Hello, my dear students. We are going to start our new chapter. Is our chapter number 5, the morphology of flowering plants. So this is our part 1 of our chapter number 5. So till now we have completed our 4 chapters, and all these 4 chapters are included in our unit 1. Our unit 1 was the diversity in the living world, meaning this is the starting of biology. Okay, we are in the 11th biology. So first of all, the basic funda is our unit 1, that is diversity, meaning different living organisms are living in this world. So that is the living world. All the organisms including humans also, bacteria, fungi, viruses, plants, all these things. So that is the living world. Now unit 1 comprises 4 chapters. Chapter number 1 our was the living world, meaning the outline of the living world. Then we have seen the biological classification, meaning all the organisms in the world are classified under this biological classification. Then we have seen chapter number 3 specially for our plants kingdom. We have seen all the plants in the world, and our chapter 4 was animal kingdom, that is all the animals in the world we have studied about them. Now this is about the unit 1, and now we are starting our unit 2 and our chapter number 5. So in the unit 2 particularly, chapter number 5, 6 and 7, 3 chapters are there in unit 2. So our chapter 5, so in our 5th chapter we have morphology of flowering plants, meaning the external study of the flowering plants. Flowering plants, as we know, they are the higher plants, also higher plants all included in the flowering plants. हमने जो भी हमारे प्लांट किंगडम में देखा था कि प्लांट किंगडम में 5 किंगडम्स जो थे प्लांट्स के, जिसमें से लास्ट वाला जो किंगडम था वो था लास्ट वाला जो क्लास था वो था फ्लावरिंग प्लांट्स वाला. ओके, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, डेट आल वी आर फेमिलियर विथ all these things. So we have to study the outer external study of the plants. Now हमें बाहर प्लांट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर आप प्लांट ले लो या ट्री ले लो, हमको बाहर से जो भी कुछ दिखता है, उसके रूट हैं, स्टेम है, लीफ, फ्लावर, सीड, फ्रूट एट्सेट्रा, सो हमको जो भी बाहर से दिखाई दे रहा है, डेट इज़ द स्टडी कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. हम जो भी उसका बाहर का स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. एंड नाउ दिस चैप्टर पर्टिकुलरली मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. सो हमें ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स का ही उसका जो एक्सटर्नल स्टडी है वो हमें करना है. सो आवर 5.1 वी विल स्टडी अबाउट द रूट, देन वी विल स्टडी द स्टेम, द लीफ, द इन्फ्लोरेसेंस, द फ्लावर, द फ्रूट, द सीड, semi-technical description of a typical flower plant, and our last point will be the description of some important families in the plant kingdom. So this is about the flowering plants. Now just start with the introduction. So the wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us, meaning as we know our living world is amazing, and also these higher plants are very amazing. So wonderful world is there for the plants. So higher plants particularly जो भी हम देख रहे हैं, बड़े बड़े ट्री हैं, ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स है जो भी फ्रूट देते हैं, फल देते हैं, that is the higher plants and they are very amazing, meaning they will never fail to fascinate us. वो हमको फैसिनेट करते ही रहते हैं, मतलब हमें एक अच्छा फीलिंग होता है कि जब हम नेचर के साथ कनेक्टेड होते हैं. So even though the angiosperms show such a large diversity in the external structure or morphology, they are all characterized by the presence of root, stem, leaves, flowers and fruit. So flowering plants meaning angiosperms. So all the angiosperms show the large diversity. उनके हर एक स्ट्रक्चर में एक कुछ ना कुछ हमें डिफरेंट देखने को मिलता है. वो एंजियोस्पर्म एक पूरा क्लास है, लेकिन कुछ ना कुछ हमें उनमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल उनके रूट्स कुछ अलग होंगे, स्टेम्स आर डिफरेंट, लीव्स, फ्लावर्स एंड अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. सो
In chapters 2 and 3, we talked about the classification of plants based on the morphological and other characteristics. Okay, so as we know, we have already studied about chapter 2 and 3, the classification of plants and all the things. So for any successful attempt at the classification and at the understanding any higher plant, or for that matter and any living organism we will study, so we need to know standard technical terms and standard definitions. मीनिंग हमको किसी भी प्लांट का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमें उसका क्लासिफिकेशन करना है या उसको स्टडी करना है, सो वी हैव टू नो द स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड टेक्निकल वर्ड्स. अगर मैं आपको इंजीनियरिंग पढ़ाऊँगा तो इंजीनियरिंग का पढ़ने के लिए जो भी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ होंगे या फिर उसकी डेफिनेशन सब यूज़ होगी, तो वो मुझे आपको बतानी पड़ेगी, तभी आप इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ पाओगे. तो सिमिलरली अगर हम प्लांट के लिए एक स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट के हमें सभी पार्ट्स को मालूम होना चाहिए. वी हैव टू नो ऑल दिस बेसिक फंडामेंटल्स. सो वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन द डिफरेंट पार्ट्स found as the adaptation of the plants to their environment. Meaning the possible variation, meaning all the different varieties of the plant species. कोई भी प्लांट की फैमिली है उसमें कुछ डिफरेंट होगा, कुछ कोई कैरेक्टर डिफरेंट होगा. देन वी हैव टू फाउंड एडेप्टेशन. एडेप्टेशन मीनिंग उसका जो हैबिट होता है प्लांट, पर्टिकुलरली प्लांट के जो कुछ ऐसे एनवायरनमेंट के साथ प्लांट्स अपने आप को ढल पाते हैं, उनको एक हैबिट हो जाती है प्लांट को कि यहाँ पर कम पानी मिल रहा है तो हमें इसी कम पानी में एडजस्टमेंट करना है. सो गाइस यू कैन से एडेप्टेशन एट्स द एडजस्टमेंट. प्लांट्स हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि वो एडजस्टमेंट कर रहा है. हम कहीं भी बाहर जाते हैं, हम ट्रैवलिंग करते हैं या पिकनिक करते हैं, तो हम खाने पीने में या कुछ भी रहने सहने में हम अपना एडजस्टमेंट करते हैं. हम एडेप्टेशन मतलब, लेकिन वो हम टेम्पररी करते हैं एडजस्टमेंट. बट यहाँ पर जो एडेप्टेशन हो रहा है प्लांट्स में या एनिमल्स में, वो उनका लाइफ टाइम तक रहेगा. वो लोग रिप्रोड्यूस होंगे तो फिर उनकी जनरेशन जो नेक्स्ट आएगी उसमें भी ये एडेप्टेशन रहेंगे. सो गाइस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो एडेप्टेशन का भी हमको मालूम होना चाहिए. सो एडेप्टेशन टू द वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज. मतलब प्लांट को किसी चीज़ से उसको प्रोटेक्ट करना है तो वो एडेप्ट होगी. देन क्लाइंबिंग, उसको प्लांट को किसी के सहारे चढ़ने में भी हेल्प हो सकती है. देन स्टोरेज, प्लांट को क्या क्या स्टोर करना है, कैसे करना है, कैसे एनवायरनमेंट में कैसे रहना है. सो ऑल दीज थिंग्स आर एडेप्टेशन. सो वी हैव टू know this about all the variations and adaptations. So for the classification, now if you put out any weed, you will see that all of them have roots, stems and leaves. Meaning आप कोई भी प्लांट का ले लोगे, प्लांट कोई भी आप उठा लोगे तो आपको रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स तो देखने को मिलेंगे ही. देन दे मे बी बियरिंग द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो. सम, अगर जो फ्लावरिंग प्लांट होगा तो उसके पास फ्लावर्स भी होंगे, फ्रूट्स भी होंगे. The underground part of the flowering plant is called as root system, while the portion above the ground forms the shoot system. So very important, from this shoot system and root system are the two different systems of the plant. अगर ज़मीन के अंदर वाला पार्ट है, अगर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट का ज़मीन के अंदर वाला पार्ट है जो ज़मीन के अंदर घुसा हुआ है, प्लांट का कोई पार्ट, तो उसको हम बोलेंगे रूट सिस्टम, ROOT, रूट सिस्टम. एंड द पोर्शन अबव द ग्राउंड, मतलब कि ज़मीन के ऊपर वाला जो हिस्सा है प्लांट का, डेट इज़ कॉल्ड एज शूट सिस्टम, SHOOT, शूट सिस्टम. सो वी विल सी इन फिगर 5.1. So this is about the thing, parts of flowering plant. You can see here shoot system is above the ground and below the ground is the root system. So you can see flower, fruit, stem, leaf, all these things are shoot system. वो लैंड के मतलब कि ज़मीन के ऊपर की साइड होते हैं. एंड लैंड के अंदर जो अंडरग्राउंड है, डेट इज़ द रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट सिस्टम, डेट इज़ कॉल्ड एज रूट सिस्टम. Now our first topic, the root. So we have completed the introduction of chapter. So the root, in majority of the dicotyledons plant, the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root which grows inside the soil. So dicotyledons is a type subclass of the angiosperms.
ओके, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें भी देर आर टू टाइप्स, मोनोकोटिलीडोन्स एंड डाइकोटिलीडोन्स। सो यहाँ पर हम डाइकोटिलीडोन्स की बात कर रहे हैं कि डाइकोटिलीडोन्स जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, उसमें क्या होता है कि उनका जो रेडिकल पार्ट होता है, रेडिकल कहाँ पर प्रेजेंट होगा, रेडिकल पार्ट इज प्रेजेंट ऑन द कनेक्शन ऑफ द स्टेम एंड रूट। स्टेम एंड रूट जहाँ पर जॉइंट हो रहे हैं वहाँ पर रेडिकल होगा। सो इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। यहाँ पर क्या बन रहा है, सबसे पहले प्राइमरी रूट बनेगा, प्राइमरी सबसे पहले आता है। ओके, सो प्राइमरी रूट पहले आएगा, देन सेकेंडरी रूट आएगा। आप जब भी पढ़ते हो तो पहले प्राइमरी सेक्शन में पढ़ते हो, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी में अभी आप पढ़ रहे हो, फिर आप कॉलेज जाओगे। सो रेडिकल से वो प्राइमरी रूट निकलेगा एंड ग्रोस इनसाइड द सॉइल, सॉइल के अंदर ग्रो होगा वो। इट बियर्स द लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स डेट आर रिफर्ड टू एज सेकेंडरी, टर्सरी एट्सेट्रा रूट्स। सो लेटरल रूट्स, एक बार प्राइमरी रूट बन गया, प्राइमरी रूट से आगे ब्रांचेस बनेगी, वो ब्रांचेस उसकी साइड से निकलेंगी, लेटरली निकलेंगी। सो डेट इज़ द रिफर्ड एज सेकेंडरी, टर्सरी एट्सेट्रा। सो द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम, TAP, टैप रूट सिस्टम। किसको बोलेंगे हम, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस जो आगे ग्रो होगी। सो एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट में हमें ये टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, दैट इज प्राइमरी रूट एंड इट ब्रांचेस। वी विल सी इन फिगर ऑल्सो। नाउ इन मोनोकोटिलीडोन्स, अभी हमने डाइकोटिलीडोन्स के बारे में पूरा कर लिया एंड द एग्जाम्पल वॉज मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट इज एग्जाम्पल फॉर द दिस टैप रूट सिस्टम। नाउ इन द मोनोकोटिलीडोन्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट lived and is replaced by the large number of roots। so प्राइमरी रूट होगा वो कुछ ही समय के लिए, कुछ ही टाइम के लिए वो प्रेजेंट होगा, then that will replace by a large number of different roots। so these roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system। so यहाँ पर प्राइमरी रूट तो है ही नहीं, प्राइमरी रूट उसका काम उसने फिनिश कर दिया। नाउ जो भी नए रूट आए हैं, दैट रूट विल ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, उसके स्टेम का जो बेस होगा वहीं से सारे के सारे रूट निकलेंगे एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। रिमेंबर द नेम फाइब्रस रूट सिस्टम एज सीन इन द व्हीट प्लांट। ऐसा हमको कहाँ देखने को मिलेगा, व्हीट प्लांट के अंदर। व्हीट इज ऑल्सो मोनोकोटिलीडोन, सो वी आर स्टडिंग अबाउट मोनोकोटिलीडोन। सो व्हीट इज द एग्जाम्पल। नाउ in some plants like grass, monstera, the banyan tree, roots arise from the parts of the plant other than the radicle। so यहाँ पर क्या हो रहा है, what is the difference here, कि कुछ ऐसे प्लांट हैं, ग्रेस जैसे, मोन्स्टेरा है, बनियान ट्री है, वहाँ पर क्या होगा, रूट जो है वो प्लांट के रेडिकल पार्ट्स में से राइज नहीं होंगे, that will not arise from that part, but they are called as adventitious root। they are arising from different part of plant, that is called as adventitious root। so this is very important definition। what is the adventitious root, कि ऐसे प्लांट होंगे, ऐसे रूट्स होंगे जो प्लांट के रेडिकल पार्ट से कुछ अलग ही पार्ट के साथ वो अराइज करेंगे, वो वहाँ से ग्रो होंगे। सो डेट इज़ द एडवेंटिशियस रूट। सो वी विल सी द ऑल थ्री फिगर। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर टैप रूट सिस्टम। सो टैप रूट में क्या हो रहा है, सबसे पहले ये प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट तो रहेगा, देन उसके साइड में से जो निकलेंगे दैट इज़ लेटरल्स एंड दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट। ओके, नाउ फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में क्या होगा, स्टेम की जो बेस था वहीं से सभी रूट्स निकल रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, एंड दैट इज़ द फाइब्रस रूट। ओके, दिस इज डाइकोटिलीडोन्स, this is monocotyledons। now adventitious root like banyan tree, so the roots are growing anywhere, प्लांट के किसी भी पार्ट में से वो ग्रो हो रहे, देखो आप। ओके, सो that is the adventitious root। so this is about the types of roots। now what is the main function of root system। भगवान ने जब रूट सिस्टम इनका प्लांट्स के अंदर बनाया तो क्यों बनाया, कोई तो उसका फंक्शन होगा। so the main function of the root system are absorption of water, minerals from the soil and providing a proper anchorage to the plant parts, storing reserve food materials and synthesis of the plant growth regulators। so this is the main role of root system। कि root system क्यों होते हैं प्लांट्स के अंदर, ताकि वो वाटर को ले सके, मिनरल्स को ले सके। जो हम पानी डालते हैं किसी भी प्लांट को, अगर हम पानी डालेंगे तो हम ज़मीन पे डालेंगे,
ओके, सो ज़मीन में से वो पानी उसके पार्ट्स में से कहाँ तक कैसे पहुँच रहा है, उसके लीव्स में, फ्लावर्स तक कैसे पहुँच रहा है. सो डेट इज़ बाय द एब्जॉर्प्शन बाय द रूट सिस्टम. ओके, सो रूट क्या करेगा, वाटर्स मिनरल्स सभी को एब्जॉर्ब करेगा एंड देन प्रोवाइड द प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स एंड स्टोरिंग द रिजर्व फूड ऑल्सो. कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो हम खाते हैं बिकॉज उसमें से हमको कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. सो वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट अपने रिजर्व के लिए रख रहा है एंड हम उसको खाते हैं. सो डेट इज़ द रिजर्विंग फूड मटेरियल. एंड अनदर फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मीनिंग प्लांट ग्रोथ में जो हेल्प करेंगे, जो हॉर्मोन्स होंगे, जो रेगुलेटर्स होंगे, डेट इज़ सिंथेसाइज, जो बनेंगे कहाँ पर, रूट्स के अंदर बनेंगे. डेट इज़ द फैक्ट्री, वी कैन से फैक्ट्री ऑफ द दिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. सो दिस इज़ द रोल ऑफ root system. This is very very important. Now the regions of the root. Regions, different areas, places of the root we will study. So the root is covered at the apex by a thimble like structure called as the root cap. So first of all root cap कहाँ पर होगी, apex, मीनिंग सबसे नीचे देख रहे हो आप, सबसे जो एंड वाला पार्ट है रूट का, वहाँ पर हम रूट कैप को देख रहे हैं. And then what is the role of root cap? It protect the tender apex of the root as it's mix. So guys, root को कुछ डैमेज ना हो, that's why the root cap is here for the protection. Now its way through the soil, meaning ये सॉइल की तरफ इसका जो बढ़ रहा है, जो ग्रो हो रहा है, ये रूट कैप वो कहाँ पर होगी, सॉइल की तरफ होगी. मतलब कि कोई प्लांट खड़ा है अगर, तो रूट कैप है वो ज़मीन की तरफ होगी. सो अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज़ द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक. दिस पर्टिकुलरली इतना जो थोड़ा सा रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर वाला जो हिस्सा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक. मीनिंग यहाँ से मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मीनिंग होता है कि डेट विल ग्रो कंटिन्यूअसली, कंटिन्यू ग्रो करता ही रहेगा प्लांट वहीं से. सो डेट इज़ द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. नाउ देन द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद द डेंस प्रोटोप्लाज्म. ये सब जो एबिलिटी है सेल्स की, डेट्स वाई वो कंटिन्यू ग्रो हो पाते हैं. दे डिवाइड रैपिडली डिवाइड होते हैं, डेट्स वाई वो मल्टीप्लाई भी होते हैं. सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. Now the cells proximal to this region undergo the rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root. So here this region is the elongation region above the region of meristematic. So it will grow, it will elongate. Elongation का मतलब क्या होता है, उसको खींचना. So root का ये जो पार्ट है वो खींचा चला जाता है. This region is called as region of elongation. Now the cells of elongation zone is gradually differentiate and mature. मीनिंग ये जो elongation का जो रीजन है, ऑब्वियसली ये elongate हो रहा है तो इसके सेल जो होंगे वो रैपिडली उसके ग्रो होंगे. elongation zone gradually differentiate and mature. Now hence this zone proximal to region of elongation is called as region of maturation. So this is the region of maturation. इसके पास में जो रीजन है ऊपर वाला, डेट इज़ द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, कि यहाँ पर ये जो सेल हैं यहाँ पर वो मैच्योर होते रहेंगे. सो रीजन ऑफ मैच्योरेशन. नाउ ओके, सो दिस इज़ द प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन. प्रॉक्सिमल का मतलब होना कि उसके पास वाला, नियर बाय. नाउ फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म द वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रूट हेयर्स. So you can see here जे root के जो hair है, hair like structure, so that is called as thread like structure and very fine and delicate, very little, so that is called as root hairs. Now these root hairs absorb the water and minerals from the soil. So the absorption of water and minerals due to these root hairs. Now modification of root. So this is our another topic. Modification मतलब कुछ changes होना, कुछ उसमें ऐसे चेंजेस होना कि उसको प्लांट को कुछ हेल्प करेंगे. सो रूट होते हैं, रूट के ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं ताकि प्लांट को कुछ फ़ायदा हो सके. सो रूट्स इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम द मॉडिफाइड. वो क्या चेंज करेंगे, का तो उनका शेप चेंज करेंगे या तो उनका स्ट्रक्चर चेंज करेंगे
फंक्शंस अदर देन द एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो उसका फंक्शन एक तो क्या है, एब्जॉर्ब करना मिनरल एंड वाटर को, बट उसके मॉडिफाई होने के बाद वो दूसरे फंक्शन भी कर सकेगा। दे आर मॉडिफाइड फॉर द सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन ऑल्सो। So these are the uses, these are the functions of modified root: support, storage of food and respiration, meaning carbon dioxide and oxygen transportation. So tap roots of the carrot, turnip and adventitious roots of the sweet potato get swollen and store the food. So this is the best example. carrot है, potato है, जो हम normally हम खाते रहते हैं. So carrot and potato है वो as we know they are the roots, but taproot of the carrot is type of taproot and potato is type of adventitious root. So they are storing the food. Can you give some much such examples? आपको भी you have to imagine and think about these examples. So have you ever wondered what those hanging structure that support the banyan trees? banyan tree आपने देखा होगा, जो वड़ बोलते हैं गुजराती में. So वो वड़ जो होता है banyan tree, हैंगिंग स्ट्रक्चर भी आपने देखे होंगे जो वड़ की वड़वाई बोलते हैं, डेट इज. सो दिस आर कॉल्ड एज प्रॉप रूट्स. वड़ की जो वड़वाई होती है जो उसको सपोर्ट देती है, डेट इज कॉल्ड एज प्रॉप रूट्स. So similarly, the stems of the maize and sugarcane have the supporting roots and coming out of the lower nodes of the stem. So just another example of maize and sugarcane. So that is also the modification of roots. Now these are called as stylic roots. This is called as stilt roots we can say also. So जो उसको सपोर्ट दे रहे हैं, जो लोअर नोड जो होता है स्टेम का, वहीं से ये रूट कमिंग आउट होते हैं एंड देन they will support. So that is called a stilt root. Now in some plants such as rhizospora growing in the swampy areas, and many roots come out of the ground and grow the vertically upwards. I will show you this picture, okay, particularly this picture. So guys, here दिस इज़ फॉर द राइजोपोरा. ये जो है इसमें क्या हो रहा है, देखो आप, जो रूट है इस ट्री, ये ट्री है बराबर, ये ट्री के जो रूट्स हैं वो रूट्स ज़मीन में से वापस निकल के आए हैं फॉर देयर सपोर्ट, सो एंड फॉर देयर रेस्पिरेशन ऑल्सो. सो इन सच प्लांट्स राइजोस्पोरा ग्रोइंग द स्वम्पी एरियाज एंड मैनी रूट कम आउट टू द ग्राउंड एंड ग्रो द वर्टिकली अपवर्ड, मतलब कि ऊपर की साइड वो वर्टिकली दैट विल ग्रो, एंड सच रूट कॉल्ड एज pneumatophore. That root is called as pneumatophores. Remember the name. And help to get the oxygen for the respiration. वह उसको ऑक्सीजन के लिए हेल्प करेगा. Okay, so you can see here this is the picture of banyan tree and modification of root for the support. ये सब क्या है, रूट ही है इसका, जो वड़ की वड़वाई होती है. Now you can see modification of root for the storage in the turnip, carrot, sweet potato. This is about the storage. एंड देन रेस्पिरेशन. सो हियर इज़ द रेस्पिरेशन के लिए जो रूट का मॉडिफिकेशन होता है वो होता है न्यूमेटोफोर इन द राइजोस्पोरा. राइजोपोरा इज़ द प्लांट. सो दिस इज़ अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. सो हियर आवर रूट इज़ completed एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द स्टेम. प्लांट का जो स्टेम होता है वी विल स्टडी दैट थिंग. सो थैंक यू. जय स्वामीनारायण.